हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय सर फिर आपके साथ क्लास 10th के पार्ट 2 वीडियो के साथ चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आइए पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ this chapter. I have told you about the chemical reactions and chemical equations. So I think firstly we should recall chemical reaction is a word equation and chemical equation is the symbolic representation of the chemical reaction taken place. Also, we have to write the physical states of the reactants and products. Reactants are the initial substance and products are the final substance. Like L for liquid, S for solid, upside arrow for gas evolve, डाउनवर्ड एरो फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठ जाता है बॉटम पर। देन कंडीशंस एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इट हैज सम साइंस, कुछ चिन्ह होते हैं इसके। That are change of state, yes. Second one is change of color. Next, yes, formation of precipitate. Next, formation of precipitate and एक और रह गया बेटा, क्या है? Change of temperature. So these are some sign with which we can identify that a particular chemical reaction has taken place. Now we move on the next topics as I have written at the board here. Look, so today's topics to be covered are in this video, part 2 video. Number 1 is forms of chemical equations. That means you have to study about skeletal chemical equation and balanced chemical equation. Second, why the chemical equation is balanced. मतलब ऐसा क्या रीजन है, what is the reason that we balance a chemical equation. Third, law of conservation of mass, इसके बारे में हम फिर पढ़ते हैं भी. And finally, examples. So in this video we are going to cover these 4 topics, 3 topics and then examples. We will know how to balance a chemical equation and why we balance chemical equation. Is clear? Yes. So I think let's start today's topic, part 2 video, class 10th, chapter 1, chemical reactions and equations. Okay. So students, we will start today's topic with law of conservation of mass. So first topic, I am starting from here, third point, third topic, law of conservation of mass. Law of conservation, law of
conservation of mass. So beta, you must have recalled it, आपको याद आ गया होगा, in your previous class, that is in the 9th class. This topic is studied by you, law of conservation of mass. आपको याद आ रहा होगा. What is the law of conservation of mass? It says in a chemical change, what it says, it is also known as the Lavoisier law. 1740 में ये proposed किया था Lavoisier ने, एंटोइन Lavoisier. याद आ गया आपको. So it says mass cannot be created and nor cannot be destroyed. The total mass of the system remains constant. What it says? It says, it is also known as the Lavoisier law. Lavoisier. Lavoisier. It says the mass cannot be created nor destroyed. मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही कंप्लीटली नष्ट. दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम. द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. जो टोटल मास है किसी भी सिस्टम का, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. किसके लिए बात कही गई है? दिस इज फॉर अ केमिकल चेंज. इन द होल यूनिवर्स दिस लॉ इज एप्लीकेबल. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था. अब ये हम जानते हैं पहले से ही. इट इज ऑलरेडी नोन टू यू that in a chemical reaction we are having some initial substance. कुछ हमारे आरंभिक substance होते हैं, and after the reaction we get some final substance. We get some final substance. That means what is that is reactants. Suppose you are having two reactants, two substance A and B, A plus B, and after the reaction these substance form the products. These products, सपोज वी आर गेटिंग C plus D. हमें दो तरह के सब्सटेंस मिलते हैं. सो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, कि रिएक्टेंट्स चेंज टू द प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन सम सब्सटेंस टेक्स पार्ट्स एंड आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. इज इट क्लियर? यस. But according to the law of conservation of mass, law of conservation of mass क्या कहता है? This law states the mass of the total system remains always constant. That means the mass of the products, the mass of the reactants is always equals to mass of products. जो रिएक्टेंट का मास है, टोटल मास, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू
the mass of products. So आपको ये 9th क्लास में बताया गया है. So this is the basic fundamental base for the balancing of a chemical equation, that the mass of reactants is always equal to, should be always equals to the mass of products. So this is known as the law of conservation of mass. I think it should be clear. अब हम इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. जब भी हम whenever we write a chemical equation, it may be that it may be balance or not. ये बैलेंसिंग का क्या मीन्स है? सो आइए बात करते हैं इक्वेशंस की. We are having two types of equations. Two types, not two types, two forms of equations. You can say unbalanced equation and balanced equation. So आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. नोट्स तो आपको फॉरवर्ड किए ही गए हैं. मैं आगे की ओर चलता हूँ. यस, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट. सो आई थिंक इट शुड बी रब्ड नाउ. So what is the law of conservation of mass? Mass of reactants should be equal to the mass of products. Now we move on. The next one, we are going to study unbalanced equation and balanced equation. So now we talk about skeletal equation. What is skeletal chemical equation? What is skeletal chemical equation? So it is not a very difficult task. It is none but ये और कुछ नहीं है. It is a unbalanced chemical equation. यानी कि ये एक ऐसी इक्वेशन होती है in which total mass of reactants, this type of chemical equation where total mass of reactants, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करने जा रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. क्लियर? सो ऐसी कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसके रिएक्टेंट्स का टोटल मास is not equal to the total mass of product, it is known as the skeletal chemical equation. Clear है बेटा? Next equation is balanced chemical equation. Balanced chemical equation. अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? आप बता पा रहे हैं इजली? इट इज अ केमिकल इक्वेशन वेयर इन विच, ऐसी केमिकल इक्वेशन इन विच टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, total mass of reactants is always equals to the total mass of products. Total mass of products. ऐसी केमिकल इक्वेशन
जहां पर या जिसमें रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल हो। सो दीज आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, विच फॉर्म वी शुड फॉलो? हमें इनमें से जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखें, कौन सी फॉर्म हमें फॉलो करनी चाहिए? वी शुड फॉलो विच फॉर्म ऑफ these two chemical equation? Answer is clear. We always follow the balanced chemical equation. हम हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही अपने नोट्स में लिखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। सो अब रीजन ये आता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ चुका होगा। Skeletal means unbalanced chemical equation and balanced means where total mass of reactant is always equals to the total mass of products. Clear? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर चलते हैं। अब बात आती है कि why do we balance the chemical equation? हम इक्वेशन को बैलेंस करें ही क्यों? हम क्यों करें बैलेंस? क्यों करें बैलेंस? सिंपल है, टू, आंसर इज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए ही किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। Where what does it say? It states that total mass of reactants is equals to total mass of products। ये यही कहता है कि in this universe a system always, the mass of a system always remains constant। क्लियर है कि मास जो है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन ऑलवेज बी कांस्टेंट, एक जैसा होना चाहिए। जितनी चीज हम लेंगे उतनी ही चीज हमको मिलनी चाहिए आफ्टर रिएक्शन। एग्जाम्पल ये है कि आप 1 लीटर मिल्क ले रहे हैं, उसको आपने कर्ड में चेंज कर दिया, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि 1 लीटर जो आपकी मिल्क आपने लिया था वो कम आपको कर्ड मिले या बहुत ज़्यादा मिले? नहीं, अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी बैलेंस्ड, दोनों इक्वल होनी चाहिए, कर्ड भी और किसका अमाउंट बेटा, किसका, वेट में दोनों इक्वल होनी चाहिए, मिल्क का। क्लियर? सो अब हम बात, स्केलेटल इक्वेशन हम नहीं लिखते हैं, जनरली वी कैन एक्सप्लेन, समझा तो सकते हैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, बट वी ऑलवेज हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Why? To follow the law of conservation of mass, which state that the total mass of reactants is always equals to the total mass of products. So now let's see some examples of balancing the equation and how we balance the equation, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।
मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ। Yes. So now we rub it. Next is how to balance. How to balance a chemical equation. हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं, लेट्स सी। आई एम कोटिंग एन एग्जाम्पल। आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल 1 इज when magnesium ribbon is burnt in the presence of oxygen or in the atmosphere or in the air, it forms magnesium oxide. आपके पास में ये एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम रिबन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इज गैस, अपर मैंने सिंबल लगाया एरो का, और हम इसे क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं एरो के ऊपर, बर्निंग, जलाते हैं इसको, एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एंड प्लस लाइट। डेजलिंग लाइट निकलती है बेटा, चकाचौंध करने वाली रोशनी, और हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। अब यहां हम देखें क्या ये रिएक्शन, इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड? नो। वी हैव रिटन हियर स्केलेटल इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है बेटा? दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन. It is not balanced, so it is not correct. Why? Because it is not following the law of conservation of mass. ऐसा क्यों? आप देखें कि इधर मैग्नीशियम का हमारे पास में एक एटम है, यहां भी एक ही एटम है मैग्नीशियम का 1, बट ऑक्सीजन इज हेयर 2 atoms are here, but this side is only 1. क्लियर हो गया बात? That means mass is not balanced. जब एटम्स बैलेंस नहीं है तो इनका मास भी बैलेंस नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम देखें बेटा तो मैग्नीशियम यहां पे 2 है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं क्या कम आ रहा है, मैग्नीशियम 1 है, यहां मैग्नीशियम 1 है तो ठीक है। और जब हम LHS में देखते हैं, सॉरी RHS में देखते हैं, मैग्नीशियम तो 1 एटम है एंड ऑक्सीजन 2 एटम है। और यहां पे बताइए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम इज ओनली 1 एटम, इज इट इक्वल? यस इक्वल। बट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज हैविंग 2 एटम्स, दिस साइड 1 एटम। सो अब हमें क्या करना चाहिए कि दोनों इक्वल हो जाएं? आपका आंसर होगा सर आप यहां पर 2 ऐड कर दें। यहां बेटा 2 नहीं, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें। आपने क्या किया, इधर आपने कंप्लीट जो प्रोडक्ट मिला है 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ रिजल्ट इज 2MgO। ये तो क्लियर हो गया। ऑक्सीजन तो 2 हो गए इस तरफ, लेकिन यहां पर अभी कुछ कमी बाकी रह रही है। क्या कमी है? मैग्नीशियम इज दिस साइड 2 एटम, बट यहां कितने बेटा 1। तो हम एक काम करें कि इस मैग्नीशियम को भी हम 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। नाउ इट बिकम्स 2Mg प्लस O2। जरा कंपेयर कीजिए इस स्टेप में।
2 mg एटम, 2 mg एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, यहां देखें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2 ऑक्सीजन एटम। तो दोनों एटम्स, दोनों एलिमेंट के एटम्स यहां इक्वल हो गए। दैट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, नाउ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है बेटा? यस, अब दोनों यहां पे कैसे हो गए हैं, ये क्लियर हो चुके हैं। अब हम इनका मास भी फाइंड आउट करते हैं। हम देखें अब ये कैसी इक्वेशन बन गई बेटा। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। हमने बैलेंस कर ली तो अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंप्लीटली फॉलो कर रही है। क्या मास इक्वल है? आपको मैंने बताया था, देखें 2 इंटू mg का मास 24 प्लस O2 ग्राम, O2 कितना बेटा 16 इंटू 2, कितना हो गया ये यहाँ बेटा 48 प्लस 16 टू 32 ग्राम इक्वल्स टू 2 mg is 24 plus oxygen is 16. How much? देखिए 42 जा 80 ग्राम और इधर भी 48 32, how much? It is 80 gram. So now the total mass of reactants is equals to the total mass of product. That means this is, now this equation is balanced and following the law of conservation of mass. क्लियर है बेटा? हम क्या करते हैं, दोनों साइड के, लेफ्ट हैंड साइड के सभी एलिमेंट्स के एटम और राइट हैंड साइड के एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर देखते हैं। जिस तरफ कमी होती है उस तरफ उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, एंड इन दिस वे वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन which will follow completely the law of conservation of mass. समझ में आ गया बेटा? this method of balancing is known as the hit and trial method. hit and trial method, इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कर करके देखना। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आगे की ओर चलें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वीडियो बन रही है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, शायद अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज व्हेन आयरन, सिंबल आपको याद होगा, Fe सॉलिड फॉर्म, it is reacted with water liquid form, it forms, these are the reactants, initial substance, it forms Fe3O4 plus H2, it forms Fe3O4 plus H2। क्लियर है? अब हाँ, दिस इज द सॉलिड एंड दिस इज गैस। इज दिस रिएक्शन और इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाता है बेटा ये और साथ में वाटर बना रहा है। इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? आप देखें जरा। नो, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल क्यों है? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि क्या दोनों तरफ एटम्स के नंबर इक्वल हैं? नहीं भाई। इधर देखें
this side Fe1, this side Hk 2 atoms and Ok 1 atom, है ना। यहां पर इधर देखें जरा क्या है, क्या कह रहा है ये, Fe के 3 एटम एंड O के 4 एटम, साथ में H के 2 एटम्स। ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना डिफरेंस। सो अब हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, देखते हैं इक्वल करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट, बैलेंसिंग। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस गिवन स्केलेटल इक्वेशन। आप बताइए, देखिए Fe यहां पर 3 एटम्स हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में Fe को किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 3 से। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, Fe कंप्लीट हो गए। दिस साइड 3Fe, दिस साइड 3Fe। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, 3Fe प्लस, आप देखिए आप H यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन तो यहां पर है 1 और इस साइड है 4, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इधर ऑक्सीजन 4 करने पड़ेंगे। तो हम इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 4H2O कर दिया, हो गया बेटा। अब यहां आप देख सकते हैं 4 2 जा 8H हो गए, और O हो गए 4 1 जा 4, नीचे 1 होता है ना, ठीक है। तो O भी कंप्लीट हो गया, Fe भी कंप्लीट हो गया और O भी बैलेंस हो गए। Fe बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, एंड इट फॉर्म्स व्हाट, Fe3O4। लेकिन अभी एक कमी रह गई, क्या रहेगी बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 2 है और अब कितने हो गए ये, 4 2 जा 8। तो हमें इसे किससे, इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, H को मल्टीप्लाई कर दें हम 4 से, 4H2। अब रिएक्शन क्या होने वाला है हमारा जो इक्वेशन, नाउ इट बिकम्स 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 plus 4H2, and now this reaction is balanced। अब ये जो इक्वेशन है, now this equation is completely balanced। कैसे, 3Fe 3Fe, 4 2 जा 8H2 8H, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 ऑक्सीजन एंड इधर 4 ऑक्सीजन। So now this equation is completely balanced equation, and now this is following the rule of, the law of conservation of mass। So इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन एक बात और, जब हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं तो बेटा हमें इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी जरूरी होती है। ये आपका आयरन तो बेटा गैसियस फॉर्म यानी कि वेपर फॉर्म में करता है रिएक्शन, गर्म पानी के साथ भी कर जाता है, लिक्विड लिख सकते हैं, चलिए लिक्विड ही रहने दीजिए। it is forms the solid and finally it is gas। So this is complete balanced equation। Let's see one more example of it। Yes, third example,
व्हेन सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में है, सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट इज केप्ट इन द सन और सनलाइट, धूप में रखते हैं तो इसके हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं. इट इज द सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है ये. ठीक है बेटा, ये होता है वाइट कलर का सॉल्ट है ये. और जब इसको हम सनलाइट में रखते हैं इट फॉर्म्स सिल्वर प्लस क्लोरीन. सिल्वर it is the silver and this one is chlorine. It is gray, silvery gray in color, so अब देखिए क्या ये बैलेंस है इक्वेशन, आप देखिए बताइए. नहीं है. ठीक है, ये बेटा सॉलिड और ये जो है पीपीटी फॉर्म में मिलता है. ठीक है, सॉरी पीपीटी नहीं, गैसियस फॉर्म में मिलता है, गैस की फॉर्म में. क्लोरीन गैस निकलती है और ये जो है होती है ग्रीनिश कलर की. कैसी होती है? ग्रीनिश कलर की होती है गैस. ठीक है, ग्रीनिश येलो, हरा लिए हुए पीला जैसा रंग होता है इस गैस का. अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है? नहीं है. आप देखें Ag के 1 एटम, Cl के भी 1. इस तरफ क्या कंडीशन है? इस तरफ है Ag के 1 एटम बट Cl हैज 2 एटम्स. ठीक है, सो बैलेंस नो. दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्केलेटल इक्वेशन. ये स्केलेटल इक्वेशन है. सो इट इज नॉट फॉलोइंग द रूल, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. अब आप इसको बैलेंस करेंगे, बिल्कुल सिंपल है. बैलेंसिंग Ag1 कोई दिक्कत नहीं है ना, बट Cl यहां पर 1 है, वहां पर कितने हैं? 2 एटम हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बताइए. Cl बनता है सिर्फ Ag प्लस Cl2. चलिए बात बैलेंस करते हैं. तो अगर हम यहां पर एक काम कर दें कि यहां पर हम 2 कर दें तो Cl तो क्लियर हो गया ना बेटा. Cl क्लियर हो जाएगा. अच्छा इधर तो Cl है ही नहीं, इधर तो सॉरी मैंने ऊपर की ओर नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया. Ag और Cl दोनों एक ही हैं. ये AgCl है और मैं एक काम करूं कि इसमें कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. सो नाउ इट बिकम्स 2Ag एंड Cl भी 2 हो गए, पर Ag यहाँ पे 1 है तो हमें इसमें Ag में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और Cl तो पहले से ही 2 है. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 2AgCl एरो सनलाइट, इधर हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2. अब बैलेंस है हर चीज. देखिए Ag2 Cl 2 1 जा 2 और Cl2. सो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. It is in solid form, solid, and it is gaseous form. So these are 3 examples and I think these are enough to know how to balance our equation. We balance our chemical equation with the help of hit and trial method. ठीक है बेटा, हम दोनों तरफ के एटम्स के नंबर को देखते हैं
और जिधर कम होता है उसी नंबर से हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और आइदर राइट हैंड साइड। वी मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, और फाइनली हम देख लेते हैं कि क्या दोनों तरफ के एटम्स, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो बराबर हैं या नहीं है, या किसी कंपाउंड के। जब इक्वल हो जाते हैं then we say that now the chemical equation is balanced and it is following the law of conservation of mass. So these are the topics for the today's video, part 2 video. आप इनको समझें ढंग से, 2 बार देखें and write the notes which I have forwarded to you. Clear? तो और देखिए, ठीक है। So these are examples, 3 examples. In our next video, part 3 video, we will discuss the types of chemical equations, reactions. हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं और उन्हें कैसे हम समझेंगे, जानेंगे, और धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल edu.science. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स।